So hello everyone, welcome to my channel Rudy's Illegal World, and today we are doing a very quick revision of chapter 4, that is Indian Equity Private Funding. In this I'll just let you know what all we have to study, but apart from that let me just tell you upfront that it's a quick revision video. It's not the whole explanation wala thing. It's a quick revision video, and once you have studied it then you can watch this video for the exam purpose. So I just let you know what all do we have to study in here. We have to study AIF regulation 2012, categories of AIF, registrations of AIF, online filing system of AIF, investment strategy of AIF, investment in an AIF. Then we have to do, I think it's visible, yeah. Then we have to do placement memorandum, schemes tenure listing. ये सब हम किस में करें, ये सब अभी तक चल रहा है AIF का. Okay. Then we have to do another thing. फिर हमको करना है कंडीशंस फॉर कैटेगरी 1 2 3 क्या, एंजल फंड, उसका एप्लीकेबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट इन एन एंजल फंड, इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड स्कीम्स, लिस्टिंग ऑफ एंजल फंड्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय एंजल फंड्स, फिर सीड फंडिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड FVCI. तो ये सब हमको कवर करना है इस रिविजन में, द होल मॉड्यूल, आई मस्ट से दैट. So firstly we'll understand what is AIF. Alternative Investment Fund क्या होता है. तो according to SEBI AIF Regulation 2012, AIF means any fund जो established है या फिर incorporated है in India. मतलब कि कोई भी फंड जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, तो ट्रस्ट हो गया, LLP हो गया, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, विच इज़ अ प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल which collect funds from investors whether Indian के हो या foreign के हो for investing it in accordance with a defined investment policy for the benefit of its investor. मतलब उनका स्कीम खुद का, and it is not covered under, ना तो वो सभी म्यूचुअल फंड में कवर होता है ये AIF वाला, ना CIS में कवर होता है, ना किसी अनदर रेगुलेशंस ऑफ सेबी में कवर होता है. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि AIF का मतलब क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू सेबी AIF रेगुलेशन 2012, AIF मतलब कोई भी फंड, एनी फंड विच इज एस्टैब्लिश्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड है इन इंडिया in the form of what, to trust, LLP या फिर body corporate, which is a privately pulled investment vehicle which collect funds from the investors. मतलब एक privately pulled investment है क्या, ये public का investment है क्या, नहीं. AIF, when we talking about, it's a privately pulled investment vehicle which collect funds from investors whether India के हो या foreign के हो, कहाँ से भी वो लोग पैसे रेज कर सकते हैं privately for investing it in the accordance with their scheme as defined investment policy for the benefits of investor, मतलब as per their scheme, and is not covered under SEBI Mutual Fund Regulation 1996, CIS Regulation 1999, any other regulations of SEBI to regulate fund management activities. So this is nothing but we did was AIF. Now we'll understand, however, following shall not be considered as AIF. मतलब ये तो AIF है, however ये वाली चीज़ें जो इस कैटेगरी में फिट हो रही है लेकिन इसको हम AIF नहीं मानेंगे. I hope it's visible to you all. Right. So इसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया, हाँ FIFO. पहले ये पढ़ लेते फिर देखते. तो दो F है अपने यहाँ पे, तो F से देखते क्या है. तो सबसे पहले बोल रहा है फैमिली ट्रस्ट एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट. देन एक और एफ से विच इज़ फंड्स मैनेज बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर RBI अंडर सेक्शन 3 ऑफ सफाइजी एक्ट 2002. मतलब फंड्स मैनेज बाय सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो, या फिर फैमिली ट्रस्ट. ओके. दो ई भी है, ई से देखते क्या है. एक तो ESOP है और एक है एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट या फिर ग्रेचुटी ट्रस्ट, दोनों भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये AIF में नहीं आएगा, ये बोलने की कोशिश हो रही है. ओ से क्या है, ओ से अदर SPV नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द फंड मैनेजर. मतलब कोई भी SPV जो इसके फंड मैनेजर ने नहीं बनाई है, इसके फंड मैनेजर ने बनाई है तो यहाँ पे जाएगी, AIF में काउंट होगी. लेकिन अगर इसके फंड मैनेजर ने नहीं बनाई है तो यहाँ पे काउंट होगी. दैट फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज AIF. अगर वो किसी मतलब इसके फंड मैनेजर ने नहीं बनाई है, अदर स्पेशल पर्पज व्हीकल. ठीक है, तो FIFO तो हो गया. हाँ से क्या है, हाँ से क्या है, H. ए से है एनी फंड विच इज़ डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय एनी अदर रेगुलेटर इन इंडिया. मतलब कोई भी फंड जिसका अलग रेगुलेटर है इंडिया में तो वो AIF के अंडर कवर नहीं होगा. ओके. H मतलब होल्डिंग कंपनी एज पर सेक्शन 2 clause 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 13. मतलब हाउ फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज AIF. मतलब होल्डिंग कंपनी जो होगी हम उसको AIF नहीं बोलेंगे as per section 2 clause 46 of the Companies Act 13. Okay. So if I conclude this, what does it say? That AIF क्या है, मतलब सुपर रिच 5 करोड़ या HNI जिस बहुत सारे पैसे हैं, हाई फाई लोग HNI. तो AIF ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पैसा जुटाते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में. इस बंदे के पास जो इंक्यूबेटर है उसके पास ऑलरेडी आइडिया है प्लस टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके पास फंड नहीं है.
तो अपना आइडिया इन्वेस्ट करेगा एआईएफ में, एआईएफ उसको मनी इन्वेस्टमेंट करेगा इंक्यूबेटर को। एआईएफ क्या होता है, तो एआईएफ नथिंग बट ग्रुप ऑफ एचएनआई ऑल्सो नोन एज एंजल इन्वेस्टर्स। तो एक ग्रुप ऑफ एचएनआई होता है एआईएफ, एंजल इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हो आप। तो ये इसने मनी इन्वेस्ट किया इंक्यूबेटर में। अब ये जो इंक्यूबेटर है इसने अपना आइडिया कन्वर्ट किया इनटू वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, इसने अपना आइडिया कन्वर्ट किया इनटू वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। एंड एआईएफ इज अ फंड इन विच private investment are pooled from HNI to make investment in venture capital undertaking. I'm repeating it again for you. AIF is a fund. AIF is nothing but is just a fund in which private investments are pooled. मतलब AIF एक fund है जिसमें private investment pool किया गया है from HNI टू मेक इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है टू मेक इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। तो बेसिकली यहाँ से पैसे खींच के लेके जा रहा है जो एआईएफ है, एआईएफ फंड जो है वो इन लोगों से पैसे ले रहा है, फंड बन रहा है और इन्वेस्टमेंट एट द एंड किधर हो रहा है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में। सो आई विल रिवाइज दिस अप फॉर यू द होल थिंग। फीफो, हाँ फीफो में हमने क्या बोला, हाँ से आगे अपना होल्डिंग कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 13। ए से आया था अपना ए से क्या था, एनी फंड विच इज़ डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय, मतलब कोई डायरेक्ट रेगुलेटर है किसी फंड का वो, ठीक है। फीफो में एफ से था अपना एक तो फैमिली ट्रस्ट और एक और एफ से था फंड्स मैनेज बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। डबल ई तो एम्प्लॉय ट्रस्ट या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर, ईसॉप ट्रस्ट या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट और ग्रेचुटी ट्रस्ट। एंड ओ से था अदर एसपीवी विच इज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द फंड मैनेजर। सो इफ आई हैव टू कंक्लूड दिस वन, व्हाट डू आई से इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी एआईएफ रेगुलेशन 2012, एआईएफ मतलब कोई भी फंड जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, एलएलपी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, विच इज अ प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच कलेक्ट फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स वेदर इंडियन के हो या फॉरेन के हो फॉर इन्वेस्टिंग इन द पर्टिकुलर स्कीम दे वांट एंड is not covered under SEBI mutual fund regulation या SEBI CIS regulation या any other regulations of SEBI to regulate the fund management activities. All right, then it says that following shall not be considered as AIF। मतलब ये तो AIF है हम समझ रहे हैं, आप बोल रहे हो कि AIF है हम समझ रहे हैं इसको, लेकिन ये following shall not be considered as AIF। तो हाँ फीफो, हाँ से आ गया आपका होल्डिंग कंपनी, ए से आ गया आपका एनी फंड विच इज़ रेगुलराइज्ड बाय, मतलब मैनेज्ड बाय सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एंड फीफो से आ गया, एफ से आ गया था आपका फैमिली ट्रस्ट, एक और एफ है उससे आ गया था आपका फंड्स मैनेज बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो 1 सेकेंड, वेयर डिड वी गो रॉन्ग? अच्छा मैंने आई थिंक एफ ही किया, माई बैड, व्हाट्स रॉन्ग, आई डोंट नो। ऑल राइट, एनी विच वेज, एच से आ गया आपका होल्डिंग कंपनी, ए से आ गया आपका एनी फंड्स विच इज़ डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय, मतलब कोई भी फंड जो डायरेक्टली कोई रेगुलेटर है इंडिया में उसका, तो वो लोग एआईएफ में नहीं आएंगे। फीफो, एफ से था आपका फैमिली ट्रस्ट, एफ से एक और है फंड्स मैनेज बाय सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ई से है ईसॉप ट्रस्ट एंड एक और ई से है एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट और ग्रेचुटी ट्रस्ट। देन ओ से है अदर एसपीवी विच इज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द फंड मैनेजर। आई होप इट्स डन. If somebody wants to take a screenshot, can take it. So now we are doing categories of AIF. When I talk categories of AIF, so there are 3 categories of AIF. पहला जो है which invest in startup और early stage venture, मतलब जो category 1 है AIF का alternative investment fund के 3 category है. कैटेगरी 3 जो है वो मोस्ट रिस्की चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, लाइक यू नो हेज फंड हो गया जो कि डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करता है, सिंपल बता रही हूँ. कैटेगरी 2 जो है वो 1 and 3 से बिल्कुल भी अलग है, 1 and 3 से. एंड आई लेट यू नो अबाउट कैटेगरी 1. कैटेगरी 1 जो है इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप में. AIF की बात कर रही हूँ, समझो कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, उसके 3 कैटेगरी है, AIF 1, AIF 2, AIF 3. तो AIF 1 जो है वो इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप में, अर्ली स्टेज वेंचर में, सोशल वेंचर में, SMEs में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अदर सेक्टर विच गवर्नमेंट कंसीडर सोशली एंड इकोनॉमिक डिजायरेबल है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से उसमें AIF 1 जाता है. जो बेसिकली स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है. तो स्टार्टअप हो गया, अर्ली स्टेज वेंचर हो गया, सोशल वेंचर हो गया, SME हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर ऐसी कोई भी सेक्टर जिसको गवर्नमेंट चाहता है, कंसीडर करता है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिजायरेबल है एज पर द गवर्नमेंट. Shall include venture capital fund, small and medium exchange fund, social venture fund, infra fund, etc. तो यहाँ पे वही आ गया, venture capital fund, SME fund, infrastructure fund and what else? Infrastructure fund हो गया, इतना ही है.
government provide various incentives to them. Can I just say one thing that to you that कि कैटेगरी वन एफ जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से जो नीड है, बेसिक नीड है कि स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है, तो उसको लेके चल रहा है, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी ना इस केस में. कैटेगरी टू क्या है? कैटेगरी टू है विच डज नॉट फॉल इन कैटेगरी वन एंड थ्री. मतलब कैटेगरी टू का अपना ही अलग रास्ता है, वो कैटेगरी वन एंड थ्री में फॉल नहीं करती है. विच डज नॉट has leverage or borrowing, which does not has leverage or borrowing other than to meet day to day operational requirement. कैटेगरी टू ए आई एफ क्या है? तो कैटेगरी टू ए आई एफ जो है वो वन एंड थ्री से बिल्कुल भी अलग है, जिसके पास लिवरेज नहीं है या बोरोइंग नहीं है अदर देन टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, इंक्लूड प्राइवेट इक्विटी, डेट फंड या फिर फंड्स ऑफ फंड. मतलब ये डेली के ऑपरेशंस के लिए ए आई एफ जो है वो फंड प्रोवाइड करने का काम करी है. दैट्स कैटेगरी टू ए आई एफ. यहाँ पे कोई भी इंसेंटिव्स नहीं मिलता भाई. आपके पास कोई लिवरेज नहीं है, कोई आपके पास डेट नहीं है, बोरोइंग नहीं है अदर देन टू मीट योर डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, तो ज़रूरत नहीं है आपके, मतलब इंसेंटिव्स नहीं देंगे. कैटेगरी थ्री है विच एम्प्लॉयज diverse or complex trading strategies and may employ leverage through investment in listed or unlisted derivatives aim for short term profit. तो बेसिकली इफ़ आई जस्ट लेट यू नो दैट डेरिवेटिव्स में खेलना, रिस्क लेना बहुत ज़्यादा, तो प्रॉफिट तो रहता ही उसमें अगर बन पड़ा तो ये जो कैटेगरी थ्री ए आई एफ जो है, जो तीसरे कैटेगरी ए आई एफ वाले, वो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं. लाइक हेज फंड्स हो गया. हेज फंड्स का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया कि हेज फंड्स क्या होता है. इफ समबडी वांट्स टू नो व्हाट इज हेज फंड्स कैन डू विजिट द वीडियो. So right now we just covered the definition of AIF. Now we are moving ahead with another definition like social venture. क्या होता है बेटा? social venture मतलब कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंपनी, कोई भी LLP या फिर कोई भी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जो फॉर्म हुई है विद पर्पस टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड इंक्लूड दीज फोर. I'll रिपीट अगेन. कोई भी कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, LLP या फिर वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जो सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनी हुई है, ये चार चीज़ें इंक्लूड करती है अपने आप में. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर सोशल सोसाइटीज रजिस्टर्ड फॉर चैरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, लिटरेसी एंड फाइन आर्ट्स. इसका मतलब क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल वेंचर, आई रिपीट इट अगेन. सोशल वेंचर मतलब कोई भी ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी, LLP या फिर VCU जो कि फॉर्म हुई है सोशल पर्पज सॉल्व करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए सोशल वेलफेयर, और एंड इंक्लूड्स चार चीज़ें कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 8 कंपनी, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. देखो ना, सब चैरिटी से रिलेटेड है यार. पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी का जो सेक्शन 8 कंपनी रहता है वो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी जो रजिस्टर्ड ही है फॉर चैरिटी एंड प्रमोट करिए साइंस, आर्ट्स, साइंस, लिटरेसी या फाइन आर्ट्स को, तो दिस इज नथिंग बट सोशल वेंचर. So then now we are doing venture capital undertaking. Now let's understand venture capital understanding क्या होता है, undertaking क्या होता है. तो means a domestic company. मतलब venture capital undertaking जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी होने वाली है. फॉरेन कंपनी को काट दो. venture capital undertaking मतलब सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी, means a domestic company जो कि लिस्टेड नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग एक ऐसी अंडरटेकिंग होती है. वेट, डिडंट आई एक्सप्लेन यू ऑन दिस दैट ये जो AIF के पैसे डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहे हैं वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में. तो जब ये इन्वेस्ट हो रहा था वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में, तो उस टाइम पे जो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग थी वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं थी. ये स्टार्टिंग का काम हो रहा है, इसका आइडिया है, टेक्नोलॉजी है, पैसे इससे ले रहा है और तब एक वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग बन रही है. तो ये एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जो था वो लिस्टेड नहीं था रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे. प्लस ऐसा वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस और प्रोवाइडिंग सर्विसेज. कोई ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर कर रहा है आर्टिकल और थिंग, एंड डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ सेक्टर. मतलब क्या बोला मैंने? सबसे पहले तो मैंने बोला कि वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग मतलब एक डोमेस्टिक कंपनी होती है. सेकंड मैंने बोला कि भाई एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट ये लिस्टेड नहीं था रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे. फिर मैंने बोला एंड ये तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, उसके साथ साथ ये ऐसे बिजनेस में इंगेज्ड है या प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज या मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई थिंग, आर्टिकल, गुड्स, लेकिन डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ सेक्टर्स. मतलब सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है. वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग डोमेस्टिक कंपनी है जो कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, इंगेज है ऐसी बिजनेस में जो कि प्रोवाइड कर रहा है सर्विस या गुड मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ सेक्टर. लाइक NBFC के एक्टिविटीज वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इंक्लूड नहीं होंगे. गोल्ड फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हो तो आप वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग नहीं हो.
activities not permitted under industrial policy of government of India, other activities specified by board in consultation with government of India। तो ये 5 चीजें अगर आप कर रहे हो, ये 4 चीजें आप कर रहे हो, तो आप वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग नहीं माने जाओगे। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो एनबीएफसी से रिलेटेड, गोल्ड फाइनेंसिंग से रिलेटेड, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो परमिटेड नहीं है अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर एक्टिविटी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो बोलेगी वो। तो 4 चीजें हमने क्या देखी। वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग सबसे पहले एक डोमेस्टिक कंपनी है जो कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट लिस्टेड नहीं होगी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, एंड engaged in the business of और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कोई बिजनेस में इन्वॉल्व या सर्विस प्रोवाइड करिए, मैन्युफैक्चर करिए कोई आर्टिकल कोई थिंग, लेकिन इंक्लूड नहीं होगी ये 4 एक्टिविटीज की एनबीएफसी में मत आओ, गोल्ड फाइनेंसिंग आप नहीं कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटीज जो परमिटेड नहीं है अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर जो सेबी बोलेगी इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी मत करना है, वो भी नहीं करना है आपको। तो ये 4 चीजें नहीं करनी है, तो हम मान लेंगे कि आप वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग हो। तो नाउ विल अंडरस्टैंड कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एआईएफ का क्या सीन है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे एआईएफ बन गया हो तो आप। एआईएफ कैन लॉन्च मल्टीपल स्कीम अंडर वन एआईएफ, मतलब एक एआईएफ के अंदर आप मल्टीपल स्कीम्स रख सकते हो। रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरीली रजिस्टर्ड अंडर दी एनी ऑफ द 3 कैटेगरीज, एआईएफ की 3 कैटेगरी, कहीं एक में किसी एक में शामिल हो जाओ। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड अंटिल द एआईएफ इज वाउंड अप और सर्टिफिकेट कैंसल्ड बाय सेबी, ठीक है। एआईएफ कैन नॉट चेंज इट्स कैटेगरी सब्सिक्वेंट टू रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया आप चेंज नहीं कर सकते हो, अपना कैटेगरी 1 है तो कैटेगरी 3 में नहीं आ सकते हो अंटिल अनलेस आप सेबी से परमिशन ले लो, ठीक है। फिर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो ओनली वाया serportal.sebi.government.in पे जाके। एआईएफ जो है वो कंप्लायंस रिपोर्ट देगा ऑनलाइन, या फिर अदर रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन जो भी है वो ऑनलाइन देगा और थ्रू ऑनलाइन सभी को देगा। तो हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑफ एआईएफ में सबसे पहले तो ये चीज़ पढ़ी कि भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तब तक वैलिड होगा जब तक या तो वाइंड अप नहीं हो जा रहे हो, या तो फिर आपको सेबी ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर दिया। समझ आ गया। एक बार आपने एआईएफ मतलब एक बार आप कैटेगरी 1 में आ गए तो कैटेगरी 2 में आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसके लिए चेंज करना है तो सभी का परमिशन ले लो। देन रजिस्टर्ड टू बी मैंडेटली रजिस्टर्ड, मतलब कोई भी रिक्वायर्ड टू बी मतलब मैंडेटरीली रजिस्टर करना है, कोई भी 3 कैटेगरी में से कोई भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना है, और एक एआईएफ में मल्टीपल स्कीम्स हो सकते हैं वो बताया। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वाया serportal.sebi.government.in, जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो ऑनलाइन आपको सेबी को ऑनलाइन के थ्रू देना है। देन विल डू स्कीम्स क्या है, ओके। सो कैन एआईएफ लॉन्च स्कीम्स, ऑफ कोर्स इट कैन लॉन्च स्कीम, हाउ। तो एआईएफ को अगर लॉन्च स्कीम लॉन्च करना है तो वो प्लेसमेंट मेमोरेंडम, जैसे कि अपना प्रोस्पेक्टस होता है, विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेसमेंट मेमोरेंडम हियर। तो एआईएफ जो है वो प्लेसमेंट मेमोरेंडम देगा प्लस फीस देगा 1 लाख का। तो ये लर्न करना है तो करो, नहीं करना है तो ठीक है। प्लेसमेंट मेमोरेंडम के साथ उसको 1 लाख का फीस देना है सेबी को। 30 डेज प्रायर टू लॉन्च ऑफ द स्कीम, आपको जब स्कीम लॉन्च करना है उसके 30 दिन पहले पीपीएम दे दो और 1 लाख का फीस दे दो सेबी को। ऑब्जर्वेशन देगा सेबी विद इन 30 डेज। तो जब आपको ऑब्जर्वेशन मिला तो प्लेसमेंट पीपीएम जो है विद अगर चेंजेस कुछ है तो आप इन्वेस्टर्स को दे दो। ये जो प्लेसमेंट मेमोरेंडम होता है ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट आप करोगे एसपीएम में, दैट इज स्ट्रेटेजीज पर्पस एंड मेथोलॉजी बताएगा। प्लेसमेंट मेमोरेंडम बताएगा कि इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है। स्ट्रैटेजीज जो होता है कैन बी चेंज, कैन बी ऑल्टर्ड। अगर स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई थी पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इट कैन बी ऑल्टर्ड अगर 2/3 ऑफ यूनिट होल्डर कॉन्सेंट दे रहे हैं, 2/3 ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सो अगर वो लोग दे रहे हैं तो आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो स्ट्रैटेजी। सो नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेसमेंट मेमोरेंडम। एआईएफ जो है शेल रेज फंड्स फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हमको ये बात तो समझ में आ रही है कि एआईएफ एक प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट से लेगा बाय इश्यू ऑफ वही प्लेसमेंट मेमोरेंडम। जैसे हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं वो प्लेसमेंट मेमोरेंडम पीपीएम इशू करेगा। व्हाट इज पीपीएम नाउ? कंटेन्स ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मतलब पीपीएम में क्या होगा तो एआईएफ एंड द मैनेजर, अबाउट द एआईएफ, एआईएफ क्या है, किस चीज़ के लिए, स्कीम क्या है, एंड द मैनेजर कौन कौन है, बैकग्राउंड ऑफ की इन्वेस्टमेंट टीम, की इन्वेस्टमेंट टीम कौन है यहाँ पर, जो की इन्वेस्टमेंट टीम मतलब कि एचएनआई कौन है और कितने कितने लोग इन्वेस्टमेंट पूल कर रहे हैं, की इन्वेस्टमेंट टीम प्राइवेटली पूल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग का बैकग्राउंड क्या है, टारगेटेड इन्वेस्टर्स कौन है आपके, एंड फी या फिर अदर एक्सपेंसेस टू बी चार्ज वो कितना होगा, टेन्योर ऑफ एआईएफ क्या होगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगा, कंडीशंस ऑन रिडम्पशंस क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स के लिए आपने क्या करके रखा है, की सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होंगे, फिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस देम, उसके लिए आपने क्या किया है, डिसिप्लिनरी हिस्ट्री क्या है,
टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड मैनर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ एआईएफ। कैन आई जस्ट से कि ये जो प्लेसमेंट मेमोरेंडम है उसमें कहीं ना कहीं एआईएफ से रिलेटेड हर एक चीज़ लिखी है। एआईएफ कौन है, पीपीएम में क्या लिखा होगा कि एआईएफ का के बारे में बताओ और मैनेजर के बारे में डिस्क्राइब करो। हमको बैकग्राउंड बताओ कि की इन्वेस्टमेंट टीम कौन सी है, किसने पैसे इन्वेस्ट किए, टारगेटेड इन्वेस्टर्स एआईएफ के इन्वेस्टर्स कौन रहेंगे, टारगेटेड इन्वेस्टर्स के बारे में बताओ, किसको आप टारगेट कर रहे हो, फीस और अदर एक्सपेंसेस टू बी चार्ज, कितना चार्ज करोगे, फीस कितना चार्ज करोगे आप, आपके एआईएफ का टेन्योर कितना होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर आपको चेंज करना है तो आप 2/3 वैल्यू ऑफ कंसेंट से कर सकते हो, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, कंडीशंस ऑन रिडेम्पशन के टाइम पे आप क्या कंडीशन रखने वाले हो, रिस्क के लिए आपने क्या टूल्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है, की सर्विस प्रोवाइडर आपका कौन है, अगर इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आप क्या प्रोसीजर करने वाले हो, कैसे एड्रेस करोगे उसको, डिसिप्लिनरी हिस्ट्री बताइए प्लीज, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्विस के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, और वाइंडिंग अप करोगे तो वो कैसे करोगे, मैनर क्या है उसका। तो ये सब होना चाहिए पीपीएम में। देयर कैन बी मोर थिंग बट अपने मॉड्यूल में इतना ही दिया है। सो इफ़ यू सी अभी तक हमने कितना कर लिया, एक तो एआईएफ कर लिया, फिर कैटेगरीज ऑफ एआईएफ करना है, रजिस्ट्रेशन कर लिया, ऑनलाइन फाइलिंग कर लिया, प्लेसमेंट मेमोरेंडम कर लिया। तो अभी हम करेंगे बेसिकली कैटेगरीज ऑफ एआईएफ। लेट्स गो फॉर ऑलराइट। तो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं, पहले हम कैटेगरी नहीं कर रहे, पहले हम इन्वेस्टमेंट इन एन एआईएफ कर रहे हैं, देन हम टेन्योर ऑफ एआईएफ क्या होगा वो करेंगे, एंड इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ क्या होगा वो करेंगे। तो ये वाला पेज कंप्लीट होने के बाद फिर हम कैटेगरीज पे कंडीशन वो जाएंगे, कैटेगरीज पे जाएंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट इन एन एआईएफ, तो सबसे पहले तो ये बोला है दैट ऑल कैटेगरी एआईएफ मे रेज फंड्स फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, मतलब जो भी कैटेगरी 1 2 3 है वो सारे इन्वेस्टर्स से पैसे ले सकते हैं, चाहे वो इंडिया का हो, फॉरेन का हो, या इंडियन रेसिडेंट इन फॉरेन हो, मतलब एनआरआई हो, तो फॉरेन का हो, इंडिया का हो या एनआरआई का हो, किसी भी पर्सन से आप पैसे रेज कर सकते हो इन दी फॉर्म ऑफ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट अंडर एआईएफ। ठीक है, फिर बोल रहा है दैट मिनिमम कॉर्पस पर स्कीम कितना होगा, मतलब मिनिमम कॉर्पस पर स्कीम, मतलब एक स्कीम का मिनिमम अमाउंट कलेक्टेबल अमाउंट कितना होगा, तो 20 करोड़ होगा, एक स्कीम मिनिमम 20 करोड़ का होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बाय ईच इन्वेस्टर, अगर किसी को एआईएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको मिनिमम जो है वो 1 करोड़ करना पड़ेगा। तो भाई वही मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही एचएनआई वाले जो पब्लिक होते हैं वो लोग इसमें 1 करोड़ का तो अपने यहाँ पे घर आ जाता है, एक बिल्डिंग आ जाती है, एक 1 BHK आ जाता है। बट वही तो बात है ना कि इनके पास पैसे हैं, तो अगर जो 1 करोड़ दे सकता है वही एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट जो भी कैटेगरी के एआईएफ है 1 2 3 है, वो लोग किसी से भी पैसे ले सकते हैं, इंडिया का हो, फॉरेन का हो, या एनआरआई हो। मिनिमम कॉर्पस पर स्कीम, मतलब एक स्कीम तो 20 करोड़ का होगा, और अगर किसी को इन्वेस्ट करना है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होगा। लेकिन अगर एआईएफ का एम्प्लॉय, डायरेक्टर या मैनेजर है तो वो 25 लाख कर सकता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग, अगर एआईएफ का खुद का डायरेक्टर, एम्प्लॉय, मैनेजर है, उसको भी एआईएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो 25 लाख तक का कर सकता है, उसके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है ये। वेरेज बाकी जो लोग हैं उनको 1 करोड़ का मिनिमम 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 इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, मिनिमम होल्डिंग ऑफ स्पॉन्सर और मैनेजर, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, अपने केस में 20% है, बट यहाँ पे देखो मिनिमम होल्डिंग ऑफ स्पॉन्सर या फिर मैनेजमेंट कितना होगा, कैटेगरी 1 और 2 के लिए ये है, कैटेगरी 3 के लिए ये है। कैटेगरी 1 और एंड 2 के लिए है कि मिनिमम प्रमोटर को कितना होल्ड करना पड़ेगा, मिनिमम स्पॉन्सर को कितना होल्ड करना पड़ेगा, तो 2.5% ऑफ कॉर्पस। लेट्स से 20 करोड़ का आपका कॉर्पस है तो उसका 2.5% या फिर 5 करोड़ जो भी कम है। अगर 2.5% ऑफ योर कॉर्पस, लेट्स से ये मिनिमम है, अगर आप 50 करोड़ का आपका कॉर्पस है, उसका 2.5 करोड़, लेट्स से जितना भी आ रहा है 7 करोड़ आ रहा है, और 5 करोड़, मिनिमम 5 करोड़ या फिर 7 करोड़, तो मिनिमम कौन सा है इसमें, तो 5 करोड़, तो 5 करोड़ आ जाएगा। कैटेगरी 3F के लिए सिमिलर बोला है दैट 5% और 10 करोड़ ऑफ कॉर्पस विच एवर इज लोअर, मतलब कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए मिनिमम स्पॉन्सर होल्डिंग है 2.5% ऑफ द कॉर्पस या फिर 5 करोड़ विच एवर इज लोअर। सिमिलर कैटेगरी 3AF वालों लोगों के लिए है मिनिमम 5% ऑफ कॉर्पस या फिर मिनिमम 10 करोड़ विच एवर इज लोअर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ पे 1000 हो सकते हैं, मतलब अगर एआईएफ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर होंगे तो 1000 से ज़्यादा इन्वेस्टर है तो फिर वो एआईएफ नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन दिस वुड बी 1000। 4 पॉइंट कर लिए, 5वां पॉइंट करते हैं। सो दी एआईएफ शेल कलेक्ट फंड ओनली बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, तो हमने वही कहा ना, पब्लिक इश्यू तो ला ही नहीं सकते लोग, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम HNI, तो इट्स अ प्राइवेट
प्लेसमेंट के थ्रू ही ये लोग कर सकते हैं। 5 पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि भाई सबसे पहले तो देखा कि जितने भी कैटेगरी के एआईएफ है किसी से भी पैसे लग सकते हैं, इंडिया का, फॉरेन का, एनआरआई का। सेकंड बोला कि मिनिमम कॉर्पस 20 करोड़ का होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बाय ईच इन्वेस्टर होगा 1 करोड़ का, एम्प्लॉय डायरेक्टर मैनेजर ऑफ एआईएफ है तो 25 लाख का, मिनिमम होल्डिंग ऑफ स्पॉन्सर मतलब मिनिमम स्पॉन्सर होल्डिंग जो कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए होगा इतना, दैट इज 2.5% ऑफ कॉर्पस या फिर 5 करोड़ विच इज लोअर। कैटेगरी 3 एफ के लिए होगा 5% और 10 करोड़ ऑफ कॉर्पस, 5% ऑफ कॉर्पस और 10 करोड़ विच इज लोअर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर कैन बी 1000 एंड इट्स एफ कैन ओनली कलेक्ट बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट।